Hello students, how are you? I hope you all are well. Myself, Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher. In last class, we had discussed about Planck quantum theory and Rutherford's atomic model. Okay, so today we are going to study about a new atomic model, that is Niels Bohr atomic model. Okay, Niels Bohr's atomic model. Niels Bohr atomic model. Okay, Niels Bohr atomic model. Niels Bohr is a scientist. Niels Bohr is a scientist. So Niels Bohr in 1913, Niels Bohr in 1913 explained Rutherford's limitations या Rutherford's जो Rutherford's एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस है उसको इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया. तो क्या कहेंगे कि Niels Bohr in 1913 explained drawbacks of Rutherford's atomic model and proposed a new atomic model, that is Niels Bohr atomic model. Okay, this atomic model based on Planck's Planck quantum theory. Okay, तो Niels Bohr atomic model based on Planck quantum theory है ना. तो लास्ट क्लास में इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया था क्या, Planck quantum theory. तो with the help of Planck quantum theory we can explain Niels Bohr atomic model. Okay, तो the assumption of Bohr's atomic model और as follows. तो इसके कुछ assumptions हैं, कुछ रूल्स हैं किसके, Niels Bohr एटॉमिक मॉडल के, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट कहेगा कि इन एन एटम electrons revolve in an atom. Electrons revolve around the nucleus in circular path. So in an atom, electrons revolve around the nucleus in circular path. ये कह सकते हैं कि definite circular path. जैसे suppose that shape of atom कैसा होता है, spherical. Shape of atom is spherical and nucleus situated at the center of atom, है ना. तो number of atoms present around the nucleus. Okay, number of circular path present around the nucleus, that is orbits. तो मैंने कहा क्या कि in an atom electron revolve around the nucleus in circular fixed path. मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह सर्कुलर पाथ में, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, और दिस सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट्स. और इस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं. ओके, दिस इज
first postulates of Niels Bohr atomic model. What is the first postulates? First postulate क्या है कि electrons always revolve in fixed circular path is known as orbits. उस fixed circular path को हम क्या कहेंगे? Orbits कहेंगे और इसी को हम सेल कहेंगे और it is also known as cell. Okay? ये क्या कि second postulates or second assumptions of Niels Bohr atomic model is there are several circular paths. There are several circular paths. उधर क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स होते हैं. There are several circular paths, but electrons revolve only in those orbits. मतलब क्या कि there are several circular paths, but electrons revolve only in those orbits whose angular momentum is h upon 2 pi. There are several circular paths. न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? बहुत सारे सर्कुलर पाथ हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स. लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा. बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? is h upon 2 pi. whose angular momentum is integral multiple कर सकते हैं. whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. ओके, तो न्यूक्लियस के अराउंड ढेर सारे क्या है? सर्कुलर पाथ हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें उस इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या होगा? इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi. ओके, उसी इलेक्ट्रॉन से. चलिए इसको समझते हैं, कैसे इसको समझेंगे. सपोज दैट कोई हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं. ओके, कि mass of electron is m. If mass of electron is m and it is revolving speed with speed v, and it is revolving with speed v. So if mass of electron is m and it is revolving with speed v at distance r in an orbit, then angular
momentum. अब suppose that this is the nucleus, और suppose that number of orbits present around the nucleus. मान लीजिए हम इसको लेते हैं, तो suppose that this is an orbit या one orbit मान सकते हैं. This is an orbit और this is the nucleus, और suppose that electrons revolve around the nucleus in an orbit with r distance from nucleus. nucleus से r distance पर, ओके. और मास क्या है इसका, m मास, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, v. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr. ये मींस मास, v मींस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r मींस डिस्टेंस बिटवीन या रेडियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr. तो एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू h. h क्या, व्हाट इज द h? h इज द प्लैंक कांस्टेंट. h की वैल्यू होती क्या है, 6.625 into 10 to power minus 34. ओके, तो H और सपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन nth ऑर्बिट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH. और मान लीजिए कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1H, सेकंड ऑर्बिट है तो 2H, थर्ड ऑर्बिट है तो 3H. तो सपोज दैट n ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है NH अपॉन 2 पाई. ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम mvr. व्हाट इज द m, mass of electron. What is the v, speed of electron. What is the r, radius between nucleus and electron. तो angular momentum इसको क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. What is the n, n is the number of orbits. Okay, what is the h, h is the Planck constant. This is the value of h. Okay, upon 2 pi. Clear? तो मैंने क्या बताया कि देयर आर सेवरल ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Suppose that मैंने क्या कहा कि if mass of electron is m and it is revolving with speed v at distance r in an orbit, then angular momentum mvr is equal to nh upon 2 pi. This is the second postulate of Niels Bohr atomic model, or this is the most important postulate of Niels Bohr atomic model. Okay, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एंगुलर मोमेंटम. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल कंपैरिजन देन अदर एटॉमिक मॉडल लाइक द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना. तो इन सब के कंपैरिजन में निल्स बोर एटॉमिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज़ दिस इज द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल और इट इज बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थियरी. ठीक है. थर्ड postulate a definite amount of energy associated a definite amount of energy is associated with each orbit. These orbits are also called. These orbits are also called energy level. These orbits are also called as energy level. Okay, so these orbits are also called as
एनर्जी लेवल। व्हाई इट इज called energy levels? मैंने क्या कहा कि a definite amount of energy is associated with each orbit. These orbits are also called as energy level. Suppose that shape of atom is spherical, nucleus present at the center of atom, several orbits present around the nucleus, है ना? Several orbits. These are orbits. It is represented as designated as K, L, M, N. Okay. And numbers में suppose that here is the N is equal to 1, N is equal to 2, N is equal to 3, and N is equal to 4. Okay. It is also known as principal quantum number. Yeah, also represented as cell K, L, M, N. But each cell has definite energy. And definite energy of electron revolve in definite energy level. This is the most important thing कि a definite energy of electron, एक definite energy का electron always revolve in definite energy level. Okay? वैसे देखा जाए तो electrons always revolve in lowest energy level. हमेशा electron lowest energy level में ही क्या करता है? revolve करता है. तो a definite amount of energy is associated with each orbit. जितने भी ऑर्बिट्स हैं K, L, M, N, R 1, 2, 3, 4 ये सब क्या करते हैं कि एक डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी को एसोसिएट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं प्रत्येक ऑर्बिट्स। इसीलिए हम इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड energy of electrons revolving in these orbits remain constant. ओके। और इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनकी भी एनर्जी क्या होती है? डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, ठीक है। मतलब एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? रिमेन कांस्टेंट होगी। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सब स्टेशनरी लेवल। सो इट इज also called stationary orbits. It is also called stationary orbits. Okay, so stationary orbits and energy level. What is the difference between energy level and stationary orbit? A definite amount of energy is associated with each orbit. These orbits are called energy level. Okay. And energy of electrons revolving in these orbits remain constant. So it is also called stationary orbits, है ना। तो a definite energy of electron always revolve in definite energy level. Okay, तो orbits is known as energy levels. Why? Because it is associated, because it is definite amount of energy is associated. Okay, and why it is called stationary orbit? Because energy of electrons revolving in these orbits remain constant. Okay, so it is also called stationary orbits. Clear? Any doubt? हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। This is the third postulate of Mills Bohr atomic model. मैंने बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मॉडल है ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑर्बिट्स कहेंगे कि 10 ऑर्बिट्स डेसी गेनेटिक
as designated as या 10 ऑर्बिट्स represented as किससे रिप्रेजेंट करते मैंने बता दिया K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, and also it is represented as number. That number is called principal quantum number. For K cell is 1, for L cell 2, for M cell 3, for N cell 4, for so on. Okay, समझ आ गया होगा आपको कि ऑर्बिट्स रिप्रेजेंटेड एज K L M N and number that is called principal quantum number. N is equal to for K cell is 1, N for 2, M for 3 and N for 4. ओके, जैसा कि आप स्ट्रक्चर के द्वारा इसको देख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, वेन इलेक्ट्रॉन्स, मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, वेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन डेफिनिट एनर्जी लेवल या वेन electron is revolving in definite energy level. When electrons revolving in definite energy level, when electrons revolving in definite energy level, it neither losses nor gains energy. Okay, this is the most important thing कि when electrons revolving, so this is nucleus, this is the orbits. When electrons revolving in definite energy level, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी डेफिनेट एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। डेफिनेट एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ओके, डेफिनेट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस कंडीशन में व्हेन डेफिनेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डेफिनेट एनर्जी लेवल, इट नाइदर लॉसेस नॉर गेन्स एनर्जी। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन न तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा न तो एनर्जी को इमिट करेगा। ओके, व्हेन डेफिनेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स revolve in different energy level, in this condition electrons not absorb energy nor lose energy, न तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा न तो एनर्जी को इमिट करेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। व्हेन डेफिनेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन definite energy level, in this situation, in this condition, okay, energy it neither loses nor gains energy. ऐसे कंडीशन में न तो ये एनर्जी को गेन करेगा और ना तो एनर्जी को लूज करेगा। ओके, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए। आपको एक एक टॉपिक का अच्छे से पूरा वीडियो बनाकर सेंड किया जाएगा। बस आपका एक ही वर्क है, एक ही काम है कि हम ध्यान से सिर्फ क्या करें, अपनी पढ़ाई करें और घर में रहें। ओके, क्योंकि इस टाइम कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। ओके, इस समय कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। About 40,000 पेशेंट पर डे हो रहे हैं। 40,000 पेशेंट पर डे क्रिएट हो रहे हैं। चलिए, लाइट आ गई है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, है ना। दिस इज K सेल, L सेल, M सेल एंड N सेल, है ना। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, फार, ओके, वैसे वैसे उनका एनर्जी लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इट मींस K सेल की एनर्जी क्या है, सबसे लोएस्ट है, मतलब इट मींस दिस इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल। अब ये जो N है, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल।
सपोज दैट लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है इसको हम मानते हैं E1, ओके, और मानिए जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है इसको सपोज करते हैं E2। क्लियर? तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? लोएस्ट एनर्जी K से, हाईएस्ट N, उसके बिटवीन कौन है? Lm, है ना? तो E1 एंड E2, E1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, E2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल, या K लोएस्ट एनर्जी लेवल है और N क्या है आपका? हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। तो when an electron jumps from, जब मतलब कूद जाना, ठीक है? कि when an electron, अभी देखिए जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है लोएस्ट एनर्जी लेवल में, उसकी एनर्जी क्या है? कम है। मैंने क्या कहा कि a definite energy of electron always revolve in definite energy level. It means कि जो K सेल है इसकी एनर्जी क्या है? डेफिनिट है, निश्चित है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी भी एनर्जी क्या होगी? डेफिनिट होगी, निश्चित होगी, है ना? अब इस इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करे, दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल और दिस इज द हायर एनर्जी लेवल, और व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, अगर ये यहां से यहां पे जंप कर जाए E1 टू E2 में, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, अब सोचिए कि डेफिनिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन डेफिनिट एनर्जी लेवल। कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, और जब वह जंप करके इसमें जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसको बाहर से एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, ऑन सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फ्रॉम का मतलब कोई बाहर से सोर्स से एनर्जी को जब सप्लाई करेंगे तब ये एनर्जी पाएगा, और जब वो एनर्जी पाएगा तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ऐसे कंडीशन में जब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसमें रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो वो क्या करेगा? जंप कर जाएगा, कहां से? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, कौन सा? K एंड N, मतलब E1 टू E2, तो क्या हो जाएगा हमारा? E2 माइनस E1, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल E, और डेल E इक्वल टू किसके होता है? डेल E इक्वल टू h न्यू के, और h न्यू इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। दिस इज द फार्मूला, ओके। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स E2 माइनस E1, E2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल, E1 क्या है? लो एनर्जी लेवल, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स डेल E, और डेल E इक्वल टू h न्यू। व्हाट इज द h? h इज द प्लैंक कांस्टेंट, ओके। व्हाट इज द न्यू? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ओके। And hc upon lambda, what is the h? H is the Planck constant. What is the c? Speed of light. What is the lambda? Lambda is the wavelength of radiation. एक चीज बात इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन, when electron jumps from lower energy level to higher energy level, or you can say E1 to E2, in this condition electrons energy absorb. इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कहां से? फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहां से एनर्जी को सप्लाई करेंगे, ओके। लेकिन जब वो E2 में पहुंचेगा तो उसका जो टाइम पीरियड है बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इसके बाद वह जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, फिर उतनी एनर्जी को ये इमिट्स कर देगा, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिससे क्या फॉर्म होती है? स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है। इट मींस यू कैन से कि दिस मॉडल आल्सो एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी जस्ट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू higher energy level, in this situation energy difference between E1 to
E2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल E, और डेल E इक्वल टू hν, hν इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ओके। और जब वही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फिर अपने लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके जाएगा उतनी एनर्जी को ये इमिट कर देगा, उतनी एनर्जी को क्या कर देगा, ये इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या डिसकंटीन्यूअस रेडिएशन। मैंने बताया था एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड, एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट्स किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ discrete bundle or you can say energy packets, or these packets is known as quanta, this packets is known as quanta। और जिससे जब ये एनर्जी को इमिट करके, एनर्जी को इमिट करेगा, जब जंप करेगा कहां से हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल में, जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा उतनी एनर्जी को ये इमिट कर देगा किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटीन्यूअस रेडिएशन या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये फार्मूला आएगा, ओके। क्लियर हो गया ये, चलिए वेरी गुड, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई, बहुत अच्छे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप लोग मन से पढ़ते हैं और मन से पढ़ते हैं, ओके। इन एन एटम, in an atom, next postulate and this is the last postulate. In an atom, when electrons revolve in definite energy level, in an atom when electrons revolve in definite energy level, कहेंगे कि in an atom, this is the nucleus or this is the circular part where the electron is revolving, okay। तो when in an atom when electrons revolve in definite energy level, या कह सकते हैं कि in an atom when electron revolving in lowest energy level, lowest energy level, इस लेवल में lowest energy level में this state of an atom, this state of an atom, this state of an atom is known as, is called ground state, is called ground state or normal state, or normal state। इसे हम ground state कहेंगे या फिर normal state कहेंगे, है ना। तो in an atom when electrons revolving in lowest energy level or definite energy level, or you can say a definite energy of electron always revolving in definite energy level, this condition of an atom is known as ground state of an atom or normal state of an atom, okay। On supplying energy to the electron, जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, in this situation electron may get excited and jumps from lower energy level to higher energy level, lower energy level to higher energy level। This state of an atom, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे पहुंच गया, हाई एनर्जी लेवल में, लो एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच गया, हाई एनर्जी लेवल में। कैसे, ऑन सप्लाइंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन may get excited and jump from lower energy level to higher energy level। This state of an atom is called excited state। कौन सा स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंडीशन एटम की ग्राउंड स्टेट की होगी या नॉर्मल स्टेट की होगी, और कौन सी कंडीशन, कब कंडीशन एटम की एक्साइटेड स्टेट की होगी। तो जब हम ऑन सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्सेज टू
to the electron may get excited and jump from low energy level to higher energy level. This state of an atom is excited state. Or when electron revolving in definite energy level or lowest energy level, this state of an atom is normal state or ground state. Okay, तो this is your overall Niels Bohr atomic model. ये आपका पूरा Niels Bohr atomic model है. इसको आप अच्छे से बार-बार इसको रिवाइज करिए, ध्यान से इस वीडियो को इसको देखिए और एक एक पास्टुलेट्स को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। और आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक आप हमको जरूर दीजिए। ओके, तो एंजॉय विद केमिस्ट्री के साथ एंजॉय करिए। ओके, आई विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।